Excuse me. Great. Thank you. Thank you. Can we have a big round of applause? I would now request Dr. Kamlesh Shastri from the Department of English, Lakshmi Bai College, University of Delhi. Welcome, ma'am. मिस ईरा भारद्वाज जी से अनुरोध करूंगी कि वे प्रोफेसर श्रीधर गौतम जी का फूलों और स्मृति चिन्ह से स्वागत करें। Welcome, you, sir. Before we start, let's introduce our dignitaries. प्रोफेसर गोपेश्वर सिंह, पूर्व अध्यक्ष हिंदी विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय। ये एक लोकप्रिय शिक्षक होने के साथ साथ प्रख्यात शोधकर्ता भी हैं। इनकी विशेषज्ञता मुख्य रूप से भक्ति साहित्य एवं आलोचना निर्देशन में अपनी डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की है। सम्मानों की श्रृंखला में मुख्य रूप से इन्हें आचार्य परशुराम चतुर्वेदी सम्मान एवं साहित्य शिरोमणि सम्मान जैसे प्रमुख सम्मानों से विभूषित किया गया है। We welcome you, sir. May I now introduce Professor Sudha Singh. She is an alumna of University of Calcutta and recipient of Chancellor's Gold Medal for securing highest marks in graduation and post-graduation examination of the university. She has a keen interest in mass media, journalism and translation. She has published several research papers in different journals and magazines of national and international repute. We welcome you, ma'am, for honoring us by coming to this panel discussion. आचार्य सुनील सरदार। आचार्य जी वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय सत्यशोधक समाज के संयोजक के रूप में कार्यरत हैं। साथ ही साथ आचार्य जी किसान संगठन आंदोलन के प्रमुख कार्यकर्ता रहे हैं। इन्होंने भक्ति संतों पर उल्लेखनीय कार्य किए हैं, जिनमें उनकी पुस्तक कबीर और उनका साईं फॉरगेटन लिबरेटर प्रमुख हैं। ये मराठी साप्ताहिक एकमेव जानकार के प्रमुख संपादक होने के साथ साथ कास्ट रिकॉन्सिलिएशन के प्रमुख संयोजक भी हैं। Dr. Sucheta Chaturvedi is an associate professor in the Department of English, Lakshmi Bai College, University of Delhi. She has 22 years of teaching experience. She has obtained her MPhil and PhD degree in literature from University of Delhi. Indian writing and women's studies are some of the areas of her keen interest. She has written poetry and articles for many journals. We welcome you, ma'am, for honoring us by coming to this panel discussion. Sridhar Gautam, he is actually representing Nepal to this panel discussion. He is a professor of English at Patan Multiple Campus, that is Tribhuvan University. Presently, he is heading MA program in English, Kathmandu Model College, 2003 onwards. He has been awarded with various prestigious awards like Long Service Medal, Tribhuvan University 2010, Mahendra Vidya Bhushan First Class 2001. He has visited to different countries including US, Israel, China, Germany, Pakistan, Bangladesh and Turkey. He is a columnist at the Kathmandu Post 2001 till 2009. We welcome you, sir, for honoring us by coming to this panel discussion. Now we hand over this session to the chair, Shri Urmilesh Urmilji, for further proceedings. It's over to you, sir. Thank you, sir. Thank you. सभी 5 वक्ता हैं।
और 5 वक्ताओं को 15-15 मिनट मुकर्रर हैं और मुझे लगता है कि 15 मिनट बहुत होते हैं सार्थक और महत्वपूर्ण बात कहने के लिए। और सभी अपने अपने क्षेत्र के विद्वान हैं, खासकर भक्ति मोमेंट के बारे में बहुत उनकी विशेषज्ञता है, तो बहुत आसानी से 15 मिनट में अपनी सर्वश्रेष्ठ बात को कह सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आमंत्रित करता हूँ प्रोफेसर। ये विषय है इस सत्र का। मेरा ख्याल है कि आयोजकों ने जब धर्म को भक्ति आंदोलन के संदर्भ में देखे जाने की योजना बनाई होगी, तो मैं नहीं जानता कि धर्म से उनका तात्पर्य मजहब और रिलीजन का था या भारतीय समाज दर्शन में धर्म की जो अवधारणा रही है, धर्मो धार्यति प्रजा, जैसा कि महाभारत में कहा है, धर्म वो है जो समाज को धारण करे, यानी समाज को ले चलने वाली जो अच्छी मानवीय प्रवृत्तियां हैं वो धर्म है। एक शिक्षक का धर्म है पढ़ाना, एक छात्र का धर्म है पढ़ना, एक न्यायाधीश का धर्म है न्याय करना, पानी का धर्म है शीतलता प्रदान करना, अग्नि का धर्म है ऊष्मा प्रदान करना। मेरा ख्याल है कि इस अर्थ में भी यहाँ हो सकता है। और एक कर्मकांड है धर्म का पक्ष, कि आप पूजा पाठ करते हैं, दान दक्षिणा करते हैं, हरिद्वार जाते हैं, काबा जाते हैं, काशी जाते हैं। ये जो बाहर वाला पक्ष है यह भी है। अब किस अर्थ में आयोजकों ने रखा है मैं नहीं जानता, लेकिन मैं भक्ति आंदोलन को जिस धर्म के अर्थ में समझता हूँ उसी अर्थ में उसे यहाँ लेना चाहूंगा और उसकी चर्चा करना चाहूंगा। मित्रों, भक्ति काव्य का एक प्रथम असर जो हमारे ऊपर होता है, उसका जो पहला अर्थ निकलता है वो ये, और जो समझ लिया गया है और समझा दिया गया है, और वर्तमान में जिस पर ज्यादा जोर है कि राम नाम सुमिरत एक बारा करहि सुनर हो सिंधु हारा। भक्ति काव्य आप पढ़ेंगे, राम का नाम लेंगे, बहुत सिंधु पार कर जाएंगे। ये सिर्फ तुलसीदास के यहाँ नहीं है, निर्गुण पंथी कबीर के यहाँ भी है, राम भजू राम भजू राम भजू भाई। अब मेरे जैसा आदमी जिसे भवसागर की चिंता नहीं है, भवसागर पार करके उस पार जाना है, मेरा कोई भरोसा नहीं है, लेकिन मेरे लिए अत्यंत प्रिय है अगर ये भक्ति काव्य, तो क्यों प्रिय है? मेरे लिए अगर अत्यंत प्रिय है कबीरदास और सूरदास और तुलसीदास और गुरु नानक, तो क्यों प्रिय है? और अगर इन्हें मैं भारत के सर्वश्रेष्ठ कवियों में मानता हूं तो क्यों मानता हूं? मित्रों, हिंदी आलोचना में मैनेजर पांडे ने कहा है कि हिंदी आलोचना में एक महाभारत जो मचा हुआ है उसका कुरुक्षेत्र भक्ति का। इसमें दो ओर से दो सेनाएं हैं, यानी सगुण भक्ति है और निर्गुण भक्ति। एक ओर से शुक्ल जी को खड़ा भी कर दिया गया है, दूसरी ओर से द्विवेदी जी को खड़ा कर दिया गया है। वे स्वयं खड़ा होना चाहते थे कि नहीं चाहते थे, लेकिन खड़ा कर दिया गया। हमारे पूर्व वक्ता प्रोफेसर A.K. सिंह ने जिस बाइनरी की चर्चा की, उन्होंने टेंशन से इनकार नहीं किया, दोनों धाराओं में द्वंद्व है इससे इनकार नहीं किया, लेकिन जिस तरह का विमर्श अभी शुरू हो गया है, निर्गुण और सगुण का जो विवाद है, वो विवाद ऐसा है जैसे कि अंग्रेजों की लड़ाई गांधी जी की लड़ाई जैसे अंग्रेजों के साथ थी, स्वतंत्रता आंदोलन जैसे ब्रिटिशर्स के साथ चल रहा था, कि एक को हटाए बिना दूसरा स्थापित हो नहीं सकता है। जब तक ब्रिटिश रूल को आप समाप्त नहीं करेंगे तब तक इंडियन होम रूल कायम नहीं होगा। क्या सचमुच ऐसा है? यह एक इसका पक्ष है। सगुण निर्गुण विवाद है, लेकिन यह सब कुछ है, इस पर विचार किए जाने के लिए।
क्या भक्ति आंदोलन को इस तरह से आत्यंतिक रूप से दो परस्पर विरोधी धाराओं में बांट कर देखने की जो ये प्रवृत्ति चली है, राजनीति के लिए तो ठीक है कि कास्ट अलायंस होता है, एक पार्टी जीतती है, क्या साहित्य में, धर्म में, संस्कृति में भी कास्ट अलायंस के तौर तरीके से साहित्य को देखने की प्रवृत्ति चलेगी, जैसा कि चुनावी राजनीति में होता है? मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है। राजनीति की चिंता फौरी होती है, संस्कृति की चिंता व्यापक और दूरगामी हुआ है। अगर ऐसा होता कि निर्गुण भक्ति के खिलाफ सगुण भक्ति खड़ा हुई है, या सगुण भक्ति के खिलाफ निर्गुण भक्ति खड़ा हुई है, तो उसी बनारस में, काशी में कबीर थे, जो ब्राह्मणवाद का, पंडा पुरोहितवाद का गढ़ है। यह तो हम कहते हैं, या हमें एक उदाहरण मिलता है कि इब्राहिम लोदी ने कबीर को दंडित किया था और पानी में डुबाया था हाथी के जरिए, लेकिन इतिहास में इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता कि ब्राह्मणवाद के गढ़, अगर सचमुच कबीर ब्राह्मणवाद को चुनौती दे रहे थे तो उसी काशी में रहते थे, कोई आक्रमण उन पर नहीं था। उसी काशी में रैदास थे। कबीर चौराहे और रैदास का जो आश्रम है आज मुश्किल से 7-8 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर निर्गुण पंथ सचमुच सगुण पंथ के इस तरह से आत्यंतिक रूप से विरोध में था, प्रतिद्वंदिता में आया था, तो रैदास में और कबीरदास में एक सांगठनिक एकता होनी चाहिए। लेकिन जितने निर्गुण पंथी संत हैं, सबके अपने अपने मठ हैं। इसलिए निर्गुण पंथ की आलोचना करते हुए और निर्गुण पंथ का अध्ययन करते हुए, खास तौर से दादू दयाल के संदर्भ में, इतिहासकार हरवंश मुखिया ने कहा है कि इतने मठ थे निर्गुण पंथियों के कि इनमें कोई एकता नहीं, और फिर इनमें कोई संगठन नहीं, और इसी के साथ उन्होंने जोड़ा है कि इनके पास परिवर्तन का कोई वैकल्पिक समाज भी नहीं था, कोई वैकल्पिक स्वप्न नहीं था। ये साहित्य के आलोचकों की बात मैं नहीं कर रहा। मध्यकाल के जो मान्य इतिहासकार हैं, हरवंश मुखिया, दादू दयाल का विशेष अध्ययन करते हुए उन्होंने कहा है कि इन निर्गुणपंथी संतों के पास समाज के परिवर्तन का कोई वैकल्पिक सपना नहीं। ये ज्यादा से ज्यादा खराब राजा की जगह अच्छे राजा की कल्पना करते हैं। और उन्होंने उदाहरण दिया है कि दादू दयाल के पद में ईश्वर के दरबार की जो कल्पना की गई है, वह मुगल दरबार है। दोनों की, मुगल दरबार की और ईश्वर के दरबार की तुलना करती है। आप जानते हैं कि अमूर्त भाव जो होते हैं हमारे दिमाग में, कवि रचनाकार उसे मूर्त उपमानों से प्रतीकित किया करते हैं। ईश्वर के दरबार का कौन सा रूप आता था दादू के दिमाग में? वो मुगल दरबार में आकर रह चुके थे और देख चुके थे आगरा का दरबार। तो हरवंश मुखिया ने ये एक अनुमान लगाया है उनके पद का हवाला देते हुए, वो ईश्वर का जो दरबार है वो अंततः मुगल दरबार है, यानी इनके पास कोई परिवर्तन का वैकल्पिक नक्शा नहीं है। समाज में भेदभाव वो देखते थे तो आलोचना जरूर थे, भेदभाव के प्रति क्षोभ था उनको नहीं। लेकिन जिस तरह का विमर्श है, क्या हम विमर्श के जरिए अपनी आकांक्षाएं इन कवियों पर तो नहीं थोप रहे हैं? ये कवि जो अर्थ देते हैं उन अर्थों से कहीं हम दूर तो नहीं गए हैं। तुलसीदास तो कहते हैं, सारे खंडन मंडन के बावजूद, निर्गुण की आलोचना के बावजूद, कहते हैं कि अंततः तात्विक रूप से सर्व नहीं, अरु नहीं, नहीं कछु भेदा। सारे मंदिर, मस्जिद और काबा काशी की आलोचना के बाद कबीर कहते हैं, वेद कहे सर्वगुण के आगे निर्गुण का विश्राम, सर्वगुण निर्गुण तजहु सुहागिन देख निजहु निज धाम। वो जो ब्रह्म है, जो ईश्वर है, वो सर्वगुण और निर्गुण के परे है।
कबीर ग्रंथावली से हमने 40, 45, 50 पदों को निकाल लिया, साखियों को निकाल लिया, और उन्हीं की व्याख्या होती रहती है, क्योंकि हमारी जरूरत वही है, उसी के कारण हमारी राजनीति चलती है और विमर्श करता है। हम कबीर ग्रंथावली या बीजक को देखने की जरूरत नहीं समझते, या संपूर्णता में किसी कवि लेखक को पढ़ने की जरूरत नहीं समझते। तो मित्रों, एक बात तो ये। दूसरी बात की, जो भक्ति काव्य है, मुझे लगता है कि यह सगुण हो या निर्गुण, एक वैकल्पिक कल्पना, वैकल्पिक स्वप्न लेकर तो आता ही है। और वो वैकल्पिक स्वप्न क्या है? एक तो सत्ता का प्रतिपक्ष, सत्ता से दूरी, संत और साहित्य की, संत और साहित्यकार की। इसलिए तुलसीदास भी कहते हैं कि हम चाकर रघुवीर के पटो लिखो दरबार, तुलसी अब का हुई है नर के मन सद्दार। कबीर भी कहते हैं कि जिसको कछु न चाहिए सोई सहंसा। कुंभनदास की तो प्रसिद्ध लाइन है कि अकबर ने जब बुलाया तो कहा कि कुंभन को, संतन को कहा सी करी सो काम, आवत जात कन्हैया टूटी विसर्ग हरिनाम। तो 2 लाइन हर कोई जानता है, लेकिन तीसरी लाइन जो बहुत ही खतरनाक, डेंजरस है, तो कुंभनदास ने कही है कि जाको मुख देखो दुख उपजियो, ताको करियो परिसलाम। जिसका मुख देखने से दुख हुआ उसे सलाम करना। हम में से कितने लोगों में साहस है कि अपने से बड़े अधिकारी के बारे में इतनी आलोचना कर सके? हम सब तो जीवन भर जोड़ तोड़ में लगे हुए लोग हैं। भक्ति काव्य को ठीक ठीक समझने के लिए इस स्वाभिमान की जरूरत है और सत्ता से प्रतिपक्ष की मानसिकता की जरूरत है। दूसरी बात ये मित्रों कि ये फर्क है कि सगुण और निर्गुण में एक विवाद रहा है, लेकिन उसका सार तत्व जो है पूरे भक्ति काव्य का और भक्ति आंदोलन का, जिसकी चर्चा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने की है, और हजारी प्रसाद द्विवेदी को भी आधार बनाकर सगुण निर्गुण विवाद खड़ा किया गया है और दूसरी परंपरा की खोज की चर्चा होती रही है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि ये थोड़े मतांतर के बावजूद कुछ चीजें ऐसी हैं जो सगुण पंथियों में और निर्गुण पंथियों में समान है। वो है कि दोनों में गुरु है, गुरु के प्रति सम्मान, बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलता। दोनों प्रेम को केंद्रीय तत्व मानते हैं, दोनों ये मानते हैं कि भगवान को प्राप्त करने के लिए किसी पंडित पुरोहित की जरूरत नहीं है। यानी प्रेम ही केंद्रीय तत्व है, वो सगुण पंथियों में हो या निर्गुण पंथियों में। और इसी प्रेम की व्याख्या इन सगुण पंथियों ने भी की है और निर्गुण पंथियों ने भी की है, अपने तमाम मतांतर के बावजूद। इसलिए इस प्रेम तत्व को आप इन कवियों में अगर ढूंढेंगे, अभी एक नरसिंह मेहता के उस भजन की चर्चा कर रहे थे जो गांधी जी का प्रिय भजन था, वैष्णव जनते तेणे कहिए पीर पराई जानी है। वैष्णव वो नहीं है जो त्रिपुंड रमाता है, जो मंदिरों में बैठता है और दाढ़ी बढ़ाता है। वैष्णव वो है जो दूसरे का दुख जानता है। कबीरा सोई पीर है जो जाने पर पीर। कबीर कहते हैं पीर वो है, महात्मा वो है जो दूसरे का दुख जानता है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधभाई। जो दूसरे का दुख जाने वही सबसे बड़ा पुण्य है, और दूसरे को दुख दे वही सबसे बड़ा पाप है। ये तुलसीदास है। सार तत्व क्या है सगुण काव्य का और निर्गुण का? सार तत्व ये है कि दूसरे का दुख पहचानो, दूसरे की सेवा करो। अगर ये नहीं किया, दूसरे से प्रेम नहीं किया, तो तुम भक्त नहीं। मित्रों, 15 साल के लगभग मानुषी पत्रिका जो मधुकेश्वर निकालती है, उसमें दक्षिण भारत के प्रसिद्ध भक्ति काव्य के विशेषज्ञ ए.के. रामानुजन का एक इंटरव्यू सुना था। उसमें ए.के. रामानुजन ने एक बात कही है कि भक्ति को देखने की हमारी आदत सिंगुलर में पड़ गई है।
हम एक वचन में उसे देखते हैं, जबकि भक्ति का चरित्र बहुवचन का है, प्लूरल का है। हमें विचार करना चाहिए। कोई कठमूल्य नहीं थे के रामानुजन। हमें विचार करना चाहिए कि क्या हम जो भक्ति काव्य को हिंदी में देखने दिखाने की आदत और खासतौर से उत्तर भारत में पड़ गई है हमें, और हम जो द्वंद्व युद्ध कर रहे हैं सगुण और निर्गुण का, तुलसी और कबीर का, ठीक ठीक न्याय कर रहे हैं कि नहीं? इन भक्त कवियों के मर्म को ठीक ठीक समझ रहे हैं कि नहीं? हमें, हमारे भीतर कोई मनसा है, हमारे भीतर कोई नया स्वप्न है, उसे हम नए ढंग से करें, इसमें कोई हर्ज नहीं। एक तो ये। दूसरी बात मित्रों कि भक्ति काव्य ने ये किया कि कुछ नई प्रस्तावना दी, नए धर्म की बात अगर होगी। आप कबीर को देखेंगे, कबीर ने जिस संन्यास को अपनाया और जिस संन्यास की प्रतिष्ठा की, वो गारहस्थ संन्यास, पत्नी के साथ रहते हुए, बाल बच्चों के साथ रहते हुए, घर का काम करते हुए, कपड़ा बुनते हुए और उसे बेचते हुए, और बाजार से घर का सामान खरीद कर लाते हुए। सन्यासी प्रायः घर छोड़कर बाहर कंदराओं में जाकर तपस्या करने वाले लोग हुआ करते थे। उस जमाने में भी लोग थे। रामानंद ब्रह्मचारी थे, महाप्रभु वल्लभाचार्य घर परिवार वाले थे, नानक घर परिवार वाले थे, कबीर घर परिवार वाले थे। बहुत सारे लोग थे जो घर